Eastern India, which is specifically West Bengal, Odisha, Jharkhand, and Sikkim belt, and Maharashtra government as well. It is the only private hospital chain with leadership in 3 major metros. This is worth noting, which is Bangalore, Kolkata, and Pune. And we are building clusters around that. We have comprehensive care spectrum spanning secondary, tertiary, and quaternary healthcare services across specialty, which means that we have the capability across the value chain to handle any sophisticated situation. We have scaled growth through disciplined M&A, including leading acquisitions like Columbia Asia, Vikram Hospital, Ambi, Medica Synergy, and the recent one, which is Shayadni Hospital, which is Pune. The company has a strong promoter pedigree and institutional backing, led by Dr. Ranjan Pai and investors including some of the leading names globally like Temasek, TPG, and Novo Holding, who are known for wealth creation across the world and not just in one geography. Before we proceed, I would like to introduce the leadership team present over here. We have Dr. Murli, who is the Chief of Medical Services. We have Mr. Karthik Rajgopalan, who is the Chief Operating Officer of the group. We have Mr. Sameer Agrawal, who is the Group Chief Financial Officer. And all these gentlemen come with decades of healthcare services experience. I would like to give a short brief on the IPO. I'm sure you have gone through the DRHP and other information, but this is a fresh issue plus OFS with fresh component of around 8,000 crore and OFS component of 2.1 crore equity shares. Total IPO size is around 9,275 crore at the upper end of the price band. Price band for the IPO is rupees 560 to 590 per equity shares with a bid lot of 25 shares. Issue opens to public on Wednesday, which is July 29, and closes on Friday, July 31st, 2026. We are scheduled for anchor tomorrow, which is Tuesday, July 28, 2026. Now, not take much of our time, I would request the management team to take you through the incredible journey of the company, including this short corporate presentation. Good afternoon, ladies and gentlemen. कोशिश करता हूँ कि मैं हिंदी में प्रेजेंटेशन करूँगा, कोशिश करता हूँ। Go ahead. जो बैंकर ने बोला है, हम आज से हॉस्पिटल बेड कैपेसिटी के हिसाब से देखें तो हम इंडिया के सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, 13,000 से ऊपर हमारा बेड स्ट्रेंथ है और 49 हॉस्पिटल है हमारा इंडिया की 19 शहरों में और 14 स्टेट्स में। और बेहद खुशी हो रहा है कि आज हमारा 50वां हॉस्पिटल खुला है, जो 13वां है बेंगलोर में और 50वां जो इंडिया नेटवर्क का वो आज खुला है और पहला आउटपेशेंट बिल्डिंग हो चुका है करीबन 1 घंटे पहले। So this is officially our 50th hospital that we've actually launched. हमारा जो इन्वेस्टर कैप टेबल है वो 3 बहुत बड़ा इन्वेस्टर्स हमारे पास है और वो भी करीबन 10 साल से हमारे साथ रहा है और they understand the healthcare landscape very well. वो पहला है जो majority है Temasek, वो 50% होल्ड करता है और हमारा पहला ओरिजिनल प्रोमोटर ग्रुप अभी वो 3rd जनरेशन में है, वो है डॉक्टर रंजन भाई रिप्रेजेंट करता है, वो करीबन 30% है उनका और टीपीजी का करीबन 11% और ये तीनों मिला के करीबन 92% है जो और 5% जो है वो एक कैल्पर्स और ब्रूनाई इन्वेस्टमेंट एजेंसीज और मुबादला जैसे भी हमारा पास है और उसका 5% है जो सो ये रहा हमारा बिगेस्ट स्ट्रेंथ है जो अदर कॉम्पिटिटिव हॉस्पिटल्स को देखेगा तो 3 मेट्रो मार्केट्स में हमारा लीडरशिप पोजीशन और सिग्निफिकेंट लीडरशिप पोजीशन है। वो पहला है बैंगलोर, वो अभी करीबन 2,500 बेड है और एक्सपेंशन के बाद वो 3,000 तक चला जाएगा। दूसरा है कैलकाटा
वहाँ पे हमारा 1,500 बेड 1,500 बेड्स है, सॉरी यार जस्ट 1,500 बेड है, वो करीबन 2,000 तक जाएगा एक्सपेंशन के बाद। और तीसरा जो है सयाद्री की खरीदने के बाद हमारा 9 हॉस्पिटल है और करीबन 1,300 बेड है अभी पुणे में, वो भी एक्सपेंशन के बाद 2,000 तक जाएगा। और इफ यू लुक एट दी लैंडस्केप ऑफ हेल्थ केयर, वी हैव दी ओनली हॉस्पिटल ग्रुप, हमें एकमात्र हॉस्पिटल ग्रुप है जो 3 मेट्रोस में हमारा लीडरशिप पोजीशन सिग्निफिकेंटली कॉम्पिटिशन से आगे है। और हमारा फ्यूचर अगर देखेगा तो करीबन 2,500 बेड हमारा एक्सपेंशन में भी आ रहा है, उसमें ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड का कॉम्बिनेशन है। ग्रीनफील्ड जो है वो नया हॉस्पिटल बन रहा है और ब्राउनफील्ड जो है वो एक्सिस्टिंग हॉस्पिटल में हम थोड़ा और बेड कैपेसिटी ऐड कर रहे हैं। ये हमारा, और इसमें 2 न्यू मार्केट में हम एंटर हो रहा है। पहला मुंबई में हमारा जुहू में 600 बेड का हॉस्पिटल आ रहा है और 18-19 महीने में वो शुरू हो जाएगा। और दूसरा है रायपुर में अभी 350 का बेड का हॉस्पिटल आ रहा है, वो इस साल FY27 का लास्ट क्वार्टर में करीबन जनवरी टू मार्च ओपन होने की संभावना है। और बाकी सब हमारा जो है वो एक हॉस्पिटल है जो बैंगलोर में आ रहा है और एक पुणे में आ रहा है। पुणे का वो जो 475 बेड का वाकड़ में आ रहा है, वहाँ का एक वेरी इंपॉर्टेंट माइक्रो मार्केट है वाकड़। और हमारा 14 हॉस्पिटल जो बैंगलोर में बोलेगा वो भी एक अच्छा सा नेबरहुड माइक्रो मार्केट में है। तो ये हमारा जो एक्सपेंशन प्लान ये तो 2,500 का। और अगर ये देखेगा तो हॉस्पिटल का ग्रोथ करने में 3 तरीके हैं। एक तो है एक्विजिशन, जो हमारा 5 एक्विजिशन हो चुका है 2021 से। दूसरा है जो ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन, जो नया हॉस्पिटल बन जाता है। और तीसरा है ब्राउनफील्ड, जहाँ एक एक्सिस्टिंग हॉस्पिटल है। ये तीनों में वी कैन से विद कॉन्फिडेंस दैट वी आर द ओनली हॉस्पिटल ग्रुप जो इस तीनों में बहुत सक्सेसफुल रहे हैं। जो हमारा 5वां जो एक्विजिशन किया है, जो लेटेस्ट है सयाद्री, उसमें भी हमारा वेरी कॉन्फिडेंट दैट वी विल बी एबल टू टर्न अराउंड। कोलंबिया एशिया में हम बहुत सक्सेसफुल रह चुके हैं, एमरी में हम बहुत सक्सेसफुल रह चुके हैं। सो देयरफॉर इट्स वी वेरी कॉन्फिडेंट दैट वी विल बी एबल टू टेक। और दूसरा है ग्रीनफील्ड, और ग्रीनफील्ड में देखिएगा तो हम 48वां हॉस्पिटल जो साउथ बैंगलोर में खुला था वो ब्रेक इवन हो गया था 5 महीने में। और हमारा 49वां हॉस्पिटल जो खुला था वो नॉर्थ बैंगलोर में, वो सिर्फ 2 महीने में ब्रेक इवन हो चुका है। सो इसीलिए वी हैव डेमोन्स्ट्रेटेड सक्सेस। एंड एज फार एज ब्राउनफील्ड इज कंसर्न, जहाँ हमने हॉस्पिटल सक्सेसफुल रहा है वहाँ भी हम एडिशनल बेड्स बिल्ड कर रहे हैं। सो अक्रॉस ऑल द 3 ग्रोथ पैरामीटर्स ऑफ हॉस्पिटल हम बहुत सक्सेसफुल रह चुके हैं। सो दिस इज वेयर वी आर। एंड in terms of short this is what we intended to actually talk to you about. तो अभी हम questions के लिए open हैं। अगर कुछ मैंने have not completed anything because of the language barrier, we will answer। हमारा CFO साहब बैठा है उधर, समीर अग्रवाल, और हमारा चीफ ऑफ मेडिकल सर्विसेज भी है डॉक्टर मुरली श्रीनिवासन। सो अगर आपको कुछ questions है तो आप पूछ सकते हैं। Thank you so much. I didn't get your name. Junaid Gandhi from Bilkul Bazaar. Yeah, Junaid, about 14% of our overall, revenues come from government schemes. 86% is the other, cash, DBA, and international business. गुजरात में शुरू करने की कोई योजना है आपकी? अभी नहीं है, जो हमने दिखाया था अभी वो जो है हमारा एक्सपेंशन प्लान से, वो जो 2,500 बेड के अलावा हम देखेंगे दिल्ली NCR में थोड़ा और हमारा बिजनेस बढ़ाने का। अभी हमारा 3 हॉस्पिटल है। और केरला में हमारा दिलचस्प है क्योंकि केरला से बहुत स्टूडेंट्स हमारा मणिपाल सिस्टम एजुकेशन सिस्टम में पढ़ चुका है, इसीलिए केरला के लिए हमारा इंटरेस्ट होगा। और तेलंगाना फिलहाल अभी गुजरात का कोई प्लान्स नहीं है। और आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी होगी तो आप ये भेज सकते हैं गुजरात में, बिकॉज
पहले कोलंबिया एशिया का एक हॉस्पिटल था, जब हमने उनको टेक ओवर किया था, आपको तो पता होगा जो जाइडस ने किया है, तो वो चल नहीं पाया था और वो लॉकअप हुआ था, मतलब उसको सेल कर दिया था उन्होंने। बट एज यू आर सेइंग कि जो हमने प्रेजेंट किया है वो आरएचपी में है कि 2425 बेड आएंगे। इनऑर्गेनिक का हमने कुछ बोला नहीं है, बट अपॉर्चुनिटी जैसे आएंगे उसको वैसे ही इवैल्यूएट करेंगे। So, very good afternoon. Shriman Karthik ji, myself Siddharth Bhatt, I am from Alpera, I am economics journalist. Now, my point is, आपका average revenue per bed कितना है? And just as you mentioned in your presentation that 2 और 5 महीने में break even हासिल कर लिया, so ये कैसे हुआ? क्योंकि कई सारे हॉस्पिटल्स को ब्रेक इवन अचीव करने में 2 साल, 3 साल, 5 साल निकल जाते हैं। सो हाउ यू डिफाइन श्योर। हमारा आप स्ट्रैटेजी को मिला के अगर देखेगा तो आरपॉप है 67,000 और उनके अलावा अगर देखेगा तो 70 से 72,000 की बीच में होगा। Now as far as can I talk in English because I may not be able to explain. See, हमारा स्ट्रैटेजी रह चुका है, जो बेंगलोर में हमारा ब्रांड का बहुत बड़ा इक्विटी है, तो वहाँ का ये जो हमारा 49वां हॉस्पिटल खुला था और 48वां, वो हमारा माइक्रो मार्केट की चॉइस के हिसाब से है, वो साउथ बैंगलोर और नॉर्थ बैंगलोर में। ये तो पहला है कि हमारा ब्रांड का इक्विटी है, दूसरा है चॉइस ऑफ लोकेशन, तीसरा हमारा जो है जो डॉक्टर्स का रिक्रूटमेंट स्ट्रैटेजी है, क्योंकि हमारे पास 12-13 हॉस्पिटल्स है, वहाँ पे भी उसका कॉस्ट थोड़ा विल बी एबल टू कोविड एंड ऑफसेट बाय टेकिंग लार्ज टीम्स हू कैन वर्क इन डिफरेंट हॉस्पिटल्स। फिर हमारा जो ऐसा है कि वो सेट ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल्स हैं जो एक नया हॉस्पिटल में डायरेक्टली ट्रांसफर हो जाता है, इसीलिए एक पहला दिन से वो मैच्योरिटी दिखाता है। ऐसा नहीं है कि हम वो नया हॉस्पिटल नई तरफ से खुलते हैं, प्रोसेसेस जो हमारा जो भी प्रोसेसेस है, मेडिकल, ऑपरेटिंग, क्वालिटी, वो सब उनका जो इंटेलिजेंस ट्रांसफर हो जाता है। इसकी वजह से हमारा ऐसा हो रहा है कि इट विल बी एबल टू ब्रेक इवन फास्टर। और हमारा स्ट्रैटेजी रहा है कि डेंसिफिकेशन, जो कैलकाटा में हो रहा है, पुणे और बैंगलोर में, वो डेंसिफिकेशन स्ट्रैटेजी जो हमारा हर एक महत्वपूर्ण माइक्रो मार्केट कवर करने का वो एक रीज़न है कि क्योंकि हमारा केयरफुल चॉइस रहता है। और ये जो ब्रेक इवन आया है, ये किसी और हमारा हॉस्पिटल से पेशेंट शिफ्ट करके नहीं आया, ये प्योर इंक्रीमेंटल है। तो कैलकाटा, पुणे और बैंगलोर में हमारा डेंसिफिकेशन स्ट्रैटेजी वर्क हो जाता है। लेकिन अभी जो मैंने बोला था कि जो रायपुर और मुंबई में खोलेंगे ना, वहाँ पे हमारा इतना डेंस नहीं है हमारा प्रेजेंस, तो वो रहेगा नॉर्मली 12 की 18 या 24 महीने के अंदर ब्रेक इवन हो जाएगा। इतना जल्दी वहाँ हम नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन जो हमारा स्ट्रॉन्ग मार्केट से जहाँ हमारा प्रेजेंस ज़्यादा है, वहाँ द एक्सपेक्टेशन इज दैट हम ब्रेक इवन कर रहे हैं जल्द से जल्द। लेकिन ये 2 महीने का ब्रेक इवन एक मेरे हिसाब से इंडस्ट्री का एक फर्स्ट टाइम होगा। ये हम देख रहे हैं, हमने पहले सोचा था कि हमारा 48वां हॉस्पिटल जो 5 महीने में ब्रेक इवन होता वो रिकॉर्ड था, लेकिन वो रिकॉर्ड अभी ये 49वां हॉस्पिटल में तोड़ा है। जस्ट एक चीज ऐड करना चाहूँगा कि अभी विद 50 हॉस्पिटल्स अक्रॉस लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द कंट्री, आई थिंक इससे टीम को एक अलग तरह का एक्सपर्टीज टीम के पास है। 50 हॉस्पिटल, 1, 2, 3, 4 नहीं, 50 हॉस्पिटल में ये इतनी बार ये प्लेबुक प्ले हुआ है कि आई थिंक वी आर द बेस्ट प्लेस इन द इंडस्ट्री। एंड ऑब्वियसली एज कार्तिक सेड कि जो जिस मार्केट में हमारा ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है वहाँ जल्दी होगा, कुछ नए लोकेशन में थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा रहेगा, बट जो भी रहेगा वो इंडस्ट्री के बेस्ट परफॉर्मेंस के हिसाब से हमको लगता है। I think there's no more question.
आप सभी का थैंक्स आने के लिए और हमारी बात सुनने के लिए। हमको ये वी बिलीव दैट आप सब पॉजिटिवली इशू को देखेंगे और सपोर्ट करेंगे। ये इंडिया का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट हॉस्पिटल ब्रांड है एंड इसने फाइनेंशियल और ऑपरेटिव हर पैरामीटर पे बेस्ट ऑफ द परफॉर्मेंस डिलीवर किया है। आई थिंक वी आर एक्सपेक्टिंग गुड इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट विच यू कम टू नो सून फ्रॉम द मार्केट। तो हम आप सबसे उम्मीद करते हैं कि बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेंगे और इस IPO को सक्सेसफुल बनाएंगे और मोस्टली जल्दी ही हम गुजरात की तरफ भी आ पाएंगे आपके सपोर्ट से। सो थैंक यू ऑल फॉर कमिंग। हैव सम स्नैक्स बिफोर यू लीव।